خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب لوگ آئے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر ادریس قریشی صاحب سے درخواست کروں گا جو ہمارے پیٹرن ہیں وہ تشریف لائیں. نہیں پیٹرن کو ہمارے جاوید قریشی صاحب سے درخواست کروں گا جو اس تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں. سب سے اسلام کا سب سے مضبوط وہ ہے نماز، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اس سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم نماز ساری یاد نہیں کرتا ہے آدمی تو الحمد شریف کے معنی ضرور یاد کرے. الحمدللہ رب العالمین اس کا کیا مطلب؟ ساری تعریف ہے اس کے لیے ہیں جو سب لوگوں سب اس کا جو ہے مالک ہے. سارے جتنے زمین آسمان سب کا مالک ہے الحمدللہ رب العالمین. پورے عالم کا جتنے عالم ہے الرحمن الرحیم جو کہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو کہ حشر کے میدان کے دن کا، حشر والے دن کے مالک، اس دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اس میں تین تو اللہ کی تعریفیں ہیں، چار میں اپنی کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں چلا دے ایسے سیدھے راستے پہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے سیدھے راستے پہ جس میں تو نے انعام دینے کا وعدہ کیا ہے. اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، جیسے تو نے انعام دینے کا الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور روک دے ایسے برائی کے راستوں سے اور ان سے جن پہ تو نے غصہ ایک آ گیا ہے. تو یہ ایک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا معنی سب کو یاد کرنا چاہیے تاکہ نماز میں ہم نماز پڑھیں تو اس کے ہمارے دل میں ایک چیز ہو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے. اسی طرح آپ سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، کام کرنے کی بہت سے لوگ کرتے ہیں، کام الگ الگ فیلڈ میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. بہت ہے اور یہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر کے کام کو اس علاقے میں بھی اور جگہوں پر بھی اس کام کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گی. اس کے بارے میں جاوید قریشی صاحب کو کہوں گا کہ وہ اور السلام علیکم، میرا نام جاوید قریشی ہے اور صدارت کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے یونائٹڈ ویلفیئر ایسوسیشن کی. اس سوسائٹی کے بنانے میں کافی ٹائم لگا. اصل میں یہ کنسیپٹ تھا جو کچھ لائک مائنڈڈ پیپل نے شروع کیا مارچ 2022 اور تبھی بائی دی اینڈ آف دیٹ منتھ، اس مہینے کے آخر تک یہ طے پا گیا ان لوگوں کے بیچ میں کہ ایک ادارہ قائم کیا گیا. پھر ادارے کی شکل کیا ہو تو شکل میں بہت ساری فارمیشن سامنے آئی کہ کمپنی بنائی جائے انڈر سیکشن 25 اور سیکشن، یا پھر ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے، یا پھر ایک رجسٹرڈ سوسائٹی بنے. طے یہ پایا کہ اس کو ایک رجسٹرڈ سوسائٹی بنی جائے تو اس سے زیادہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور کوئی نہیں. تو اس سوسائٹی کا باقاعدہ رجسٹریشن کرایا گیا اور 27 جولائی 2022 کو اس سوسائٹی کا رجسٹریشن ہو گیا. رجسٹریشن کے فوراً بعد اس کی جو انکم ٹیکس کی کارروائی تھی وہ پوری کر لی گئی، اس کا پین وغیرہ حاصل کر لیا گیا
बैंक अकाउंट वगैरह प्रॉपर खोल लिया गया। बैंक अकाउंट 2 खोले गए। वजह उसकी यह है कि हम लोगों ने आपस में ये तय किया है बेसिकली कि हम लोग आउटसोर्स या आउटसाइड फंडिंग पर इनिशियली इन्हिसार नहीं करेंगे, बल्कि म्यूचुअल आपसी कंट्रीब्यूशन से इस सोसाइटी को चलाएंगे। तो उसमें 2 तरह के फंड हम लोगों ने इकट्ठा करने की बात की है। रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1000 रुपये, जो मेंबर हमारा बन रहा है 1000 रुपये, 100 रुपये महीना सब्सक्रिप्शन फी का जो है वो हम लोगों ने किया, वो भी आ रहा है। इसके अलावा हमने मेंबरान से ये कहा कि हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह जो इस ग्रुप में है वो इस तरह से साहिब हैसियत है कि वो सभी ज़कात देने वाले हैं माशाअल्लाह। तो ज़कात की जो तरीक़ाकार है, उसकी जो खर्च करने के जो हैं, उसमें हमने कहा कि सबसे पहले अपने घर, अतराफ, रिश्तेदारों की कफालत फरमाएँ, उसके बाद में अपने आस पड़ोस और इलाके के लोगों की कफालत फरमाएँ, उसके बाद भी अगर कुछ फंड बचता है और उसका भी जो हिस्सा वो मुनासिब समझते हैं तो वो इस इदारे को, तो एक बैंक अकाउंट ज़कात फंड को हैंडल करेगा और उनका यूटिलाइजेशन सिर्फ वहीं होगा जो ज़कात की मद में आते हैं। दूसरी जनरल अकाउंट होगा या है, जिसमें जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं या दूसरे और काम हैं वो सब वहाँ से लेके जाएंगे। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं या महाना दे रहे हैं या कोई और कंट्रीब्यूशन भी करते हैं तो वो आता जाएगा और उसमें से खत्म हो जाएगा। तो ये एक खाका है इसका कि कैसे आमद होगी और कैसे अखराजात को पूरा किया जाएगा। तो पहली ही मीटिंग में, क्योंकि जैसा बताया खालिद साहब ने, हमारी सोसाइटी के 3 मकासद रखे गए हैं। पहला मकसद है एजुकेशन, दूसरा मकसद है मेडिकल या हेल्थ केयर और तीसरा है सोशल वेलफेयर। अब सवाल पैदा ये होता है कि एजुकेशन के फील्ड में आज हमने महसूस किया कि इदारों की कमी नहीं, स्कूल भी बहुत सारे मुहैया हैं, अवेलेबल हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी कायम हैं। असल ज़रूरत है कि हम ख़ास तौर से अपनी कम्युनिटी को मोटिवेट करें, उनको जो है इस तरफ राग़िब करें कि वो तालीम की तरफ राग़िब हों, अपने बच्चों को दाखिले दिलाएं। यहीं पर दूसरा मरहला है कि अगर दाखिले में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हम लोग माविन हों, मदद करें। तीसरा मरहला है कि अगर उनको किफ़ालत में प्रॉब्लम हो, चाहे वो फ़ीस की शक्ल में हो, चाहे वो बुक्स की शक्ल में हो, या इवन इस तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो कि किसी का बच्चा कहीं काम करता है और उस काम से एक आमदनी आ रही है जिसकी वजह से उसको पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम कंपनसेट कर दें, उसको वो ज़राया आमदनी बाकी रहे और उसकी किफ़ालत भी करें। चाहे ये काम हम चंद लोगों का ही कर पाएँ, ज़रूरी नहीं है कि मास इसके ऊपर हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम ये करें। तीसरा इसका स्टेप हमने सोचा है कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स बहुत हैं। आप लोगों ने सोचा कमेटी रिपोर्ट पढ़ी और बहुत सारी, तो ड्रॉप आउट्स को रोकने और उनको फिर से मोटिवेट करना और एंगेज करना तालीम के लिए ये बहुत अहम काम है। तो इसमें हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि ड्रॉप आउट्स को रोकें और ड्रॉप आउट्स की मदद करें कि वो फिर से तालीम को ज्वाइन कर सकें अगर वो कर चुके। तीसरा मरहला आता है वो है वोकेशनल गाइडेंस का। आफ्टर 12 और ग्रेजुएशन और जो है बच्चों को राह नहीं मिलती कि क्या करें क्या ना करें, तो हमारी ये कोशिश होगी कि वोकेशनल गाइडेंस। तो इसलिए हमने तय ये किया है इनिशियली कि हम कोई इदारा इत्सल्फ कायम नहीं करेंगे, बल्कि तालीम को फ़रोग़ देने के लिए जितनी काम हो सकते हैं वो बाकी सब हो करें। इसी तरह मेडिकल हेल्थ केयर का मसला, तो इस सिलसिले में भी हम लोगों ने कोई हॉस्पिटल या बड़े हेल्थ सेंटर कायम करने का नहीं सोचा। हमारा इरादा सिर्फ यह है कि मैक्सिमम हम चंद इलाकों में कोई क्लिनिक्स खोल सके, प्राइमरी क्लिनिक्स, जहाँ से फर्स्ट प्राइमरी
जो है मेडिकल हेल्प मिल सके। एक वो तरीका है। दूसरा है कि हम अगर किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, किसी हॉस्पिटल में उसको एडमिशन की ज़रूरत है, कहीं पर उसको माली इमदाद की ज़रूरत है, तो वो सब भी हम करें। तीसरा हम लोगों ने सोचा है कि अलग अलग जगहों पर जाकर हम मेडिकल फ्री कैंप जो है ऑर्गेनाइज करें और उसमें मुख्तलिफ शोबे से स्पेशलिस्ट को बुलाएं, उनको इन्वाइट करें और वो जो है यहाँ पर लोगों को देख सकें। तो इसी सिलसिले की पहली कड़ी के तौर पर 2 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार संडे इसी मुकाम पर जो है फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद होगा इंशाल्लाह, जिसमें हमने कोशिश की है कि जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो आ जाए, जो दांतों के स्पेशलिस्ट हैं डेंटिस्ट हैं वो आ जाए, जो डाइटिशियन हो सकते हैं वो आ जाए, जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं वो आ जाए। इसके साथ साथ जो जनरल फिजिशियन जो कि बाकी चीज़ों को देख सके, नज़ला, जुकाम, बुखार, ये वो और चीज़ें, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उस तरह की चीज़ों को। तो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी फ्री मेडिकल कैंप फॉर कंसल्टेंसी। बट अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ कि उसको दवा की भी हमको इमदाद देंगे तो इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये एक छोटा सा खाका है। अब इसमें क्या किया गया है, बेसिकली डॉक्टर्स को अप्रोच किया गया, उन डॉक्टर्स की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स माशाल्लाह, और सारे ही डॉक्टर्स ने बिना किसी मुआवजे के यहाँ आना मंजूर किया, कंसेंट दी है, अपने अपने नाम दिए, अपनी डिग्रीज के साथ में, अपना पूरे प्रोफाइल के साथ में, ताकि वो उनका नाम भी यहाँ से आगे बढ़े और वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सके। बेसिक बात ये है कि उनको भी शामिल किया गया है और उनको इस बात का एहसास दिलाया भी गया, वो है भी कि ये कार्य खैर है, इसमें किसी उजरत की ज़रूरत नहीं। तो ये सारा इंतज़ाम जो है इंशाल्लाह 2 अक्टूबर को यहाँ होगा, सुबह 9 बजे से 9:30 to 4, यानी शाम के 4 बजे तक यहाँ पर जो है वो कैंप चलेगा। शॉर्ट ब्रेक होगा लंच के लिए, बाकी पूरे ये टाइम जो है चलेगा। और इसमें यहाँ पर बेडरूम का डॉक्टर्स का इंतज़ाम होगा, बाहर पेशेंट्स के लिए शामियाना वगैरह और कुर्सियों का इंतज़ाम होगा जिससे वो बैठ सकें। और उस वक्त में जो है बाकायदा जो भी पॉसिबल हो सकेगा हम लोगों को ऑर्गेनाइज़र के तौर पर वो सब हम करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा खाका जो है वो यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन का बताया जाए कि कौन है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम बात यह है कि हमारी इस सोसाइटी में जो लोग हुए हैं वो सारे हाईली एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस और विजनरी लोग जो दूर तक की सोचते हैं कि आगे हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से हम उसमें मददगार साबित हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि वो अपने ज़राए से इन चीज़ों को पूरा करने के लिए तैयार है, बल्कि यूँ कहें ना कि वो उतावले हैं कि हम कुछ कर पाए। इस जज्बे के साथ में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जिसमें जो भी जिम्मेदारी है, अपने ट्रेजरर साहब हैं आसिफ जफर साहब, हमारे पैटर्न्स में डॉक्टर इब्लिस कुरैशी साहब हैं, इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल कैरियर भी बहुत पुराना है। इनके अलावा ज़हूरुल इस्लाम साहब हैं जो कि बहुत सीनियर सिटीज़न है और बहुत ही सीनियर एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, वो आज नहीं आए हैं। तीसरे हमारे पैटर्न में हैं डॉक्टर ज़ैके फैज़ान। ज़ैके फैज़ान भी एक जाना माना नाम है और काफ़ी मतलब नेशनल लेवल पर उनको भी रिकग्निशन हासिल है। वो मुख्तलिफ इदारों से जुड़े हैं और मुख्तलिफ तरीके से बहुत सारे कारनामे अंजाम दे रहे हैं। अदरवाइज एज ए प्रोफेशन वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। बाकी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने
सब्सक्राइबर और बाकी लोगों को जोड़कर 21 लोगों की गवर्निंग बॉडी बनाई है और वही गवर्निंग बॉडी पूरे फैसले करके चीज़ों को अंजाम देगी इंशाल्लाह। तो हम लोग चाहेंगे, ये आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे इस कैंप को कामयाब करने में आपका भरपूर ताउन जरूरी है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस कैंप की तारीख को, वेन्यू को, डॉक्टर्स की लिस्ट को, वो सब हम मैं अभी आपको रिटिन में मुहैया करा रहा हूँ, जो आपको जो है उनका मतलब कहीं और नहीं चला करना पड़ेगा, वो सब पूरी डिटेल जो है अभी आपको दे दी जाएगी। तो आप प्लीज़ इसको जो है मैक्सिमम पब्लिसाइज करें, लोकल सोशल मीडिया खास तौर से, प्रिंट मीडिया और दूसरे जो भी ज़राए हो सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि बैनर्स लगाए जाए, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पम्फलेट्स लगाए जाए, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पोस्टर्स मसाजिद के इर्द लगाए जाएँ। ये भी कोशिश है कि जो लोकल मसाजिद हैं यहाँ इतराफ़ की, उनमें बाकायदा जुमे की नमाज में ऐलान कराया जाए कि यहाँ पर कैंप लग रहा है, ताकि यहाँ के रेजिडेंट्स हैं इस एरिया के, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुस्तफ़ीद हो सकें, यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकें। यही हमारी जो है कोशिश है और इसमें आपका भरपूर ताउन अशद ज़रूरी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसमें दवाइयों का भी इंतजाम होगा? जी, दवाइयाँ बेसिक जो दवाइयाँ हैं जो जनरली डॉक्टर लिखेंगे वो हम रख रहे हैं। मान लीजिए आई स्पेशलिस्ट जनरली ड्रॉप्स लिखता है तो वो दवाई होंगी। उसके अलावा डेंटल वाला अगर कोई पेस्ट या ब्रश या कोई चीज़ है तो वो मुहैया होगी। इसी तरह से जैसे कफ का है, नज़ले का, जुकाम का, जो भी है वो सब दवाइयाँ होंगी, वो सब दवाइयाँ होंगी। लेकिन अगर वो लिख रहा है टेस्ट कराइए, एक्सरे जाके कराइए, स्कैन कराइए, नॉर्मल जो कोई टेस्ट होता है टेस्ट का भी कुछ होगा? क्या चीज़ होगा? टेस्ट वगैरह का जो नॉर्मल होते हैं? नहीं, टेस्ट यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ब्लड टेस्ट होगा, शुगर का और बीपी का टेस्ट होगा, ताकि ये तयन हो जाए कि उसको फ्यूचर मेडिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है। और आई टेस्ट है, आई टेस्ट होगा, आई टेस्ट में उसको नंबर भी दिया जाएगा। साथ में हमने डॉक्टर्स को एक फ्री शिप दी है, आपको नॉलेज में होना चाहिए कि वो अपने इदारे का, अपने क्लिनिक का, अपने हॉस्पिटल का रेफरेंस देना चाहें दे सकते हैं कि फर्दर इलाज के लिए अगर वहाँ जाएं, किसी को चश्मा बनवाना है या किसी को जो है मज़ीद इलाज की ज़रूरत है, किसी का कैटरेक्ट है, अब कैटरेक्ट की सर्जरी तो यहाँ हम नहीं करा सकते, तो वो जाकर उनसे कंसल्ट करेगा या कहीं और कंसल्ट करेगा, कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा। बाकायदा कैंप वाले दिन यहाँ पर जितने लोग आएंगे उनका एक काउंटर होगा बाहर, जो कि रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उस रजिस्ट्रेशन में उनकी जो बेसिक डाटा है सिर्फ वो लिया जाए, जैसे नाम, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ और उसका डेट ऑफ बर्थ, ताकि डॉक्टर को पता हो किसी एज ग्रुप में है, और उसका जो है मोबाइल नंबर है और सिग्नेचर। बस उसके बाद उसको डायरेक्शन दे दी जाएगी कि किस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास उसको जाना है। यहाँ पर काउंटर होंगे मंथली पास, तो रिकॉर्डिंग वहीं से मार्क हो कराएगा और वो उनके पास जाएगा। तो कोशिश ये होगी कि आने वाले मरीजों को कोई दिक्कत किसी को ना हो। इसमें आपने एक बात एजुकेशन की बात कही आपने, और आपको इदारे खुले नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप कहे सबसे बड़ा मामला है इदारे तो हैं लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, मेयार नहीं है, तो उस मेयार के लिए भी आप कुछ काम करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी चूँकि हमने ये तय किया है कि हम एजुकेशन सिस्टम में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं जा रहे इनिशियल। कल क्या होगा खुदा बेहतर जानता है। आज की तारीख में हमारा काम है मोटिवेट करना, एजुकेट करना, हेल्प करना, दरवाजे तक पहुंचा दें। नहीं, एजुकेशन हेल्प के लिए या इस तरह के जो आप कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों की मदद करेंगे, जी, तो उसके लिए आप कोई हेल्प डेस्क या कुछ नंबर जारी करेंगे या क्या हाँ, करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऐसा है, रजिस्टर्ड ऑफिस हमारी सोसाइटी का अल-अमीन बिल्डिंग में है, जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट ऑफिस है, उसी के थर्ड फ्लोर पे। और हमारा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है अभी वो जौहरी फॉर्म में खोला गया है, तो वहाँ का नंबर और वहाँ की सब चीज़ जो है मुहैया की जा रही है। सबको जो पम्फलेट अब बनेंगे उसमें वो सब चीज़ें आएंगी।
تاکہ لوگ وہاں رجوع کر سکیں. وہاں پر جو ہے ہماری آفس انچارج بھی موجود رہیں گی, لوگوں کو بریف بھی کریں گی اور ان کی ریکوائرمنٹ کو نوٹ بھی کریں گے. اچھا, جو بھی آپ نے ایک بات کہی کہ ہم مدد کریں گے لوگوں کی, جی, تو مدد کا بنے جو بھی آپ کی حیثیت ہو سکتی ہے این جی او کی, اسی بنیاد پر آپ کریں گے. اس کے علاوہ ہم کیا کریں, جتنی گورنمنٹ اسکیمز ہیں, چاہے وہ اسکالرشپ سے متعلق ہوں, چاہے وہ ایڈمیشن سے متعلق ہوں, چاہے وہ ریسرچ سے متعلق ہوں, جتنا بھی گورنمنٹ جو اویلیبل ہے ہمارے پاس رہے ہیں. سبینہ جی بیٹھی ہیں, یہ ایجوکیشنسٹ ہیں, پروفیسر ہیں جامعہ میں, تو یہ آلویز ہنڈ پر رہتی ہیں کہ کیا چیز نہیں آ رہی, فوراً ہی اٹھاتی ہے. ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر نسیمہ نعمانی جڑی ہیں جو کہ میڈیکل ایکسپرٹ سائٹ پر, جتنا میڈیکل سے متعلق چیزیں آتی ہیں کہیں بھی, وہ فوراً ہی ہمارے گروپ پر ڈال دیتی ہیں. اس کو ہم آگے جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ کیا اوینیوز اویلیبل ہے, اور اب ان میں مان لیجیے فارم بھرنے میں, اپلائی کرنے میں پرابلم آتی ہے. ہمارا رول یہاں سے پہلی بات جانکاری دینا, اور دوسری بات ان چیزوں پر عمل کرنا. ہیلپ ڈیسک, یس, تو ہم ایکچولی کچھ بھی نہیں کر رہے, سب کچھ جو ہے اپنے ذاتی انوائرمنٹ کے طور پر کر رہے ہیں. اچھا, یہ آپ کا میڈیکل کیمپ جو 2 اکتوبر کو ہوگا, جی, تو یہ آپ کنٹینیو کریں گے یا کیا, کس سے کریں, کیا آپ نے بنایا اس کا؟ انشاءاللہ ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم جامعہ نگر کے انیشلی ڈفرینٹ کارنرس کو کور کریں. نہیں مطلب کیسے, مہینے میں یا 2 مہینے میں, 6 مہینے میں, کس طرح سے؟ پیریوڈیسٹی ابھی ڈیسائڈ نہیں کی ہے, لیکن ہم نے کیا ہے, ہمارے آرگنائزیشن تو ٹھیک ہے 3 مقاصد لے کے چلی, لیکن انیشلی ہم نے 2 کمیٹیاں بنائی, ایک ایجوکیشن کمیٹی ہے, ایک ہیلتھ کیئر کمیٹی. ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ پروگرام لے کر آئیں, اس کے ساتھ میں بجٹ بھی لے کر آئیں, تاکہ گورننگ باڈی اس پر غور کر کے صحیح فیصلہ لے. تو میڈیکل کیمپ کی انشاءاللہ سیریز ہوگی, یہ بالکل صحیح بات ہے. اس کا ٹائم کا تعین ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی دیکھ کر, مطلب یہ ضروری نہیں کہ اگر یہ 2 اکتوبر کو ہو رہا تو دوسرا 2 نومبر کو نہیں, ڈپینڈ کرے گا. 7 نومبر کو ڈاکٹر اویلیبل ہے تو 7 کو ہوگا, 5 کو ہوگا 5 کو ہوگا, 20 کو ہوگا 20 کو. تو ایسا گیپ نہیں ہم بتا پائیں گے, لیکن انشاءاللہ ہو. اچھا جاوید بھائی, اس میں آپ کی 21 لوگوں کی گورننگ باڈی ہے, اس کے علاوہ کتنے ممبران ہیں آپ ٹوٹل؟ دیکھیے ابھی ممبران ہمارے 21 بھی پورے نہیں ہیں. اوکے, ابھی ہمارے پاس 19 لوگ ہیں جڑے, کل 19 ہیں, لیکن سارے ایکٹیو ہیں. امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 19 لوگ کے 19 لوگ ایکٹیو ہیں, ان میں کوئی بھی پیسو نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گھر بیٹھ کر یہ کہتا ہو کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. نہ, ساتھ ہونے کا مطلب ہے کام کرنا, اور کام ہی سے کام چلے. اس میں کچھ ممبر ہونے کی کچھ شرطیں ہیں آپ کے یہاں؟ لیکن سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ ہمارے مقاصد میں پورا یقین رکھتا ہو, کمٹمنٹ, مقاصد کو سمجھے اور اس کی تکمیل کے لیے اس کا کیا رول ہو وہ ڈیفائن کریں. ہم لوگ باقاعدہ یہ جو اسکریننگ کمیٹی ہم ایک بنا رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو ہماری تعداد کانٹیکٹ سے ہم لوگ لوگوں کو لا رہے ہیں. آپ سے ملے, آپ کو ہم نے دیکھا پایا کہ آپ ہمارے عقائد سے جو ہے وہ متفق ہیں اور ہمارے لیے معاون ہوں گے یا اس آبجیکٹیو کے لیے معاون ہوں گے, تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم کو جوائن کریں. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کام ہوگا, اصل میں کیا ہے, جب تک کام کر کے نہیں دکھائیں گے تب تک کچھ ہوتا نہیں. ہم اس میں نہیں ہے کہ پہلے ممبر شپ بڑھا لو, پہلے یہ کر لو وہ کر لو. سب آپ نے اس میں ایک سوشل ویلفیئر کا رکھا ہے, جی, سماج سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے, لیکن جو ہمارا سماج بنتا جا رہا ہے کہ میں لفظ کال کر رہا ہوں, ایک بغل والے فریٹ اگر مر جاتا ہے تو ہمیں اندر یعنی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے مرا, کس بیماری سے مرا, یا کس تکلیف سے مرا, یا کس طرح کی مالی پریشانیوں سے مرا. تو اس طرح چیزیں جو خاص طور جو فلیٹ کی زندگی میں ہے یہ بہت زیادہ پیدا ہونے لگی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کا کچھ چیزیں ہیں کیا؟ دیکھیے, ہم نے جیسے عرض کیا, پرائمری آبجیکٹو ایجوکیشن اور میڈیکل ہیلتھ کیئر. سوشل ویلفیئر از اے ویری وائڈ ٹرم, ویری ویری وائڈ ٹرم. اس کے کنوٹیشنس میں ہم جائیں گے تو 1000 چیزیں نکل جائیں.
1000। तो वो पिक एंड चूज वाला डिपेंडिंग अपॉन दी इंसिडेंट और अपॉर्चुनिटी तय होगा। अभी एज सच कोई ये प्लानिंग नहीं है कि हमें डाउरी के अगेंस्ट काम करना है, हमें जो है वो छोटे बच्चों की शादियों को रोकने का काम करना है, हमें जो है वो निकाह और सलाह में, ये सब अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव काम में फिलहाल लगने की हमारी फर्ज है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब होगा तब देखा जाएगा। रखा है उसको इसलिए कि ऐसी जरूरत पड़ सकती है, नहीं क्योंकि ये हमको हेल्पिंग हैंड देना पड़े। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से उभर रही हैं। हाँ ठीक है, वी विल हैंडल। वो है ना कि जब वो लाएगा तो क्रॉस करेंगे। अभी पहले हम कोई बहुत नहीं क्योंकि आप शुरुआत कर रहे जी। हैं तो सारी चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। बिल्कुल है चाहे हमारे। आप मनसूबा 2 महीने या 2 साल बाद बनाए वो अलग बात है, लेकिन सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। देखिए, अगर आप हमारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे या हमारे मेमोरेंडम से एक्सेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम डिफरेंट फ्रंट पर क्या क्या करते हैं। तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। बहरहाल वो भी खसूसी तौर पर आप चाहेंगे हम आपको मुझे पढ़ेंगे ताकि आप पढ़ सकें, देख सकें कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या करते हैं, उनके पास क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है। माशाल्लाह हमारे जो वेटरन्स के बारे में मैंने बताया, रईस आजम खान साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये खुद जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स से रिटायर्ड हैं। आप जो है एयर कंडीशनिंग इंजीनियर है आसिम सफर साहब, तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बहुत मामूली, और सिर्फ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी मुख्तलिफ इदारों से जुड़ा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जी, रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास, आप हैं, मैं भी आपको शेयर कर दूँ। ऐसा है नहीं, वो लिखना नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। जिसको मेमोरेंडम की कापी मिलती है उसमें सर्टिफिकेट भी लगा होता है रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन का नंबर भी होता है, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होती है। ये हमारा मेमोरेंडम है, जो कि मेमोरेंडम हम लोगों ने विद लोगो छापा है। और इसमें जैसा कि फरमाया था, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंने 27 जुलाई बताई, तो 27 जुलाई ही लिखी, 27 जुलाई को हुआ। और जहाँ तक नंबर का ताल्लुक है तो ये 1885 है 2022 नंबर है। और एक मेंबर की फीस कितनी है? इसके जो मेंबर्स हैं, मैंने अर्ज किया कि हमने तय किया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपये एक बार बस, उसके बाद भी उसको उसकी डिमांड होगी। दूसरे हर महीने 100 रुपये जो है देने होगी, और इसमें हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी या माहाना फीस से पेट्रन्स को मुस्तस्ना रखते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी मदद करें, जो चाहे दे सकते हैं, जो चाहे दे, लेकिन पेट्रन्स का मतलब तो हम सब प्रश्न करते हैं, उनसे हम कोई फीस का ना डिमांड कर सकते हैं, ना ही हमें करनी चाहिए। ज्वाइनिंग में कोई एज ग्रुप भी आपने रखा है? जैसे कि देखिए, आपने एडल्ट होना जरूरी है, सारे लोग, एडल्ट होना जरूरी है। अच्छा, आपके सारे लोग जितने वेरिफाई करते सीनियर है यहाँ, सारे हाँ, सीनियर हैं। सारे सीनियर है। मैं अब आपको कोई बताऊँ। अंडर 40 सबसे पहले आप इनसे आसिम साहब नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो मैंने ना आसिम साहब ये कोऑर्डिनेटर हैं मेडिकल कैंप। मैं मेरी बात है, उनकी तारीफ कराना चाहूँगा, ठीक है। आप 50s के एज ग्रुप में हैं, मेरी वाइफ भी इसकी मेंबर हैं, वो भी 50s के ग्रुप में हैं। ये बैठे हैं साबिर अली अंसारी साहब, ये फाइन आर्ट फैकल्टी में हैं, और ये भी अभी रिटायर नहीं हुए हैं, बाकायदा जॉब पर। तो हमारे पास हर एक ग्रुप के लोग हैं, और हमने अरशद अली से देखी हैं जो कि मेडिकल कमेटी के मेंबर हैं, वो भी यंग हैं। बहुत सारे यंग लोगों की कोशिश की है। हमने 2 चीज़ों का एहतियात रखी। जो हमारे 11 लोगों ने जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया, उसमें आप देखिए कि 11 में 4 फीमेल। बहुत अच्छी बात। ये 11 नाम हैं, इन 11 में 4 फीमेल हैं। इनके नाम हैं डॉक्टर नसीमा नोमानी साहिबा, जो कि बहुत मशहूर एडवोकेट की वाइफ हैं, वसी अहमद नोमानी साहब,
आपको अच्छी तरह मालूम है। साइकेट्रिक है। हाँ हाँ। और ये समीना नसरीन साहिबा और सरना फिरदौस कुरैशी, माय वाइफ, और मिसेस फरहाना मरियम, शी इज डूइंग PhD इन कंप्यूटर तो ये जो हमारा लोगो बना है, इसमें दोनों का काबिज शामिल है, हमारे फाइन आर्ट्स अकेडमी की और हमारी इस टीम की। तो ये सब लोग जो हैं मिलकर काम कर रहे हैं। तो असल में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट कभी भी इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं आएगा। वो इट्स ए टीम वर्क, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जामिया नगर का जब नाम आता है जी। तो पिछले दिनों से कुछ खबरें इस तरह की चलती हैं कि साहब ये NGOs का गहवारा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों माने में ली जाती है। ये कहा जाता है 2750 NGOs यहाँ पर इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। एक और उसके बाद इजाफा 27 जुलाई को आप कर चुके हैं। इन 2700 में से कितने एक्टिव नज़र आते हैं हमको, आपको सबको अंदाजा होता है। एड्रेसेस मौजूद हैं, सब कुछ है, तो ये एक्टिव रहना एक बड़ा चैलेंज आपने कायम कर लिया है। इसके लिए अपने आप को और अपने साथियों को लेकर के किस तरह से चूँकि तैयार करते हैं? देखिए, असल चीज़ तो दो ही है, एक है मोटिवेशन और दूसरी है स्पिरिट। स्पिरिट अगर आदमी में है और छोटा सा मोटिवेशन भी उसको बहुत आगे ले जाएगा। तो अभी तक जो लोग जुड़े हैं, आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तक जो लोग जुड़े हैं वो सब कमिटेड लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, और दे मीन्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी। और इंशाल्लाह ये काम करने वाली सोसाइटी बनी है, ये पेपर पर बनने वाली सोसाइटी नहीं होगी। हेल्थ के हवाले से साहब इसके विटनेस बनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। हेल्थ के हवाले से मैं एक इनपुट मेरा है, सवाल भी हो सकता है, वो ऐड भी हो सकता है कि आप जामिया नगर अबू सदन कॉलेज में कैंप लगाए हैं, तो इस कैंप लगाने से पहले क्या ऐसा मुमकिन होता है अगर 1 महीने पहले आपके चंद लोग यहाँ पर कोई ऐसा सर्वे करते डोर टू डोर कि मसाइल हेल्थ के सबसे ज़्यादा क्या है, आप उसे डिटेक्ट कर पाते, तो फिर ये और ज़्यादा, अभी तो जनरल आपने डॉक्टरों को बुलाया है, लोग आएंगे अपने तौर पर, लेकिन अगर ऐसा होता तो देखिए, वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स को बुलाया गया है। अगर हम सिर्फ आई कैंप लगाते तो आपकी बात बहुत जायज़ होती, अगर हम सिर्फ डेंटिस्ट को बुलाते तो बात फिर भी जायज़ होती, अगर हम सिर्फ फिजिशियन को बुलाते बात तब भी जायज़ होती, सिर्फ डाइटिशियन को बुलाते तब शायद जायज़ होती। ऐसा कुछ नहीं, हमने कोशिश की है। देखिए, जब जनरल काम होता है तो जनरल ही उसको कलेक्शन होता है। हमने सभी डिफरेंट कैटेगरीज के ट्रीटमेंट को यकजा करने की कोशिश की है, और पहले अटेम्प्ट में हम ये कर पाएंगे, अल्लाह ताला करा दे तो हम मानेंगे कि इट विल बी ए सेटिस्फाइंग। एनी अदर? साहब, एक चीज़ मुझे कहनी थी कि जो आपने 100 रुपये महीना रखा है, मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि इसमें कलेक्शन प्रैक्टिकली देखने में आता है कि एक बार में तुम 10,000 रुपये दे देगा, लेकिन मंथली नहीं दे सकता। ये हम लोगों की एक टेंडेंसी है। हमने इसका इलाज किया, हमने इसका इलाज किया है। हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई 27 जुलाई को, तो अगस्त से लेके दिसंबर तक कितना हुआ? 5 महीने। तो हमने अगस्त में 500 रुपये कलेक्ट कर लिए 5 महीने, यानी 4 महीने का एडवांस। तो अब इंशाल्लाह जनवरी में हम 3 महीने का और कर लेंगे। हमको फिर 300 में कुछ वजन आ गया, आपकी बात में भी वजन है, इसलिए हमने भी वजन कायम किया है कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब राइटफुल लोग हैं। 100 रुपये देने में बार बार वाकई कबाहत हो सकती है, लेकिन हमने 100 रुपये क्यों रखे? उसकी वजह दो है। पहली बात तो जुड़े रहने का एक मकसद है, दूसरी बात है इम्पॉर्टेंट वो ये कि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे आगे चलकर, क्योंकि रूल को एक बार बने हैं तो फिर उसके लिए हम कुछ और करें वो ठीक नहीं होता है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। आपने देखा होगा पहले तो 4 आने की और 1 आने की पर्ची कटती थी, अब 10 रुपये की या 5 रुपये की पर्ची कटती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में। उसका मकसद कोई रिकवरी नहीं होता है, उसका मकसद है लोगों को ये रियलाइज़ कराना कि इसके लिए मैंने पेमेंट किया, मुझे इसे यूज़ कर, नहीं तो फेंक देगा बाहर निकल। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा
रजाई साहब ने जिस बात जो सवाल उठाया बड़ा जेन्युइन इस माने से है कि कम्युनिटी का जो रिस्पांस है, हंगामी रिस्पांस हमारी कम्युनिटी पुलिस का 70 साल से देती है। जब भी कोई बड़ा वाक़या हो, हादसा हो, फ़ौरन निकल कर आती है, पैसा देना हो पैसा देती है, कहीं खड़ा होना खड़े होती है। लेकिन अगर उसी कम्युनिटी को आप छोटा सा टास्क रेगुलर दे दें तो 2 महीने 3 महीने के बाद वो डेट करता है, चाहे वो पैसे की बात हो या बुलाने की आप बात कर लें। ये हमारा सबका एक तरह से एक प्रॉब्लम है। तो ये जो इनका सवाल है कि रेगुलर बेसिस पर, हालांकि बहुत सा होता है, तो मुझे लगता है आपने जो एक आइडिया अपना डेवलप किया कि मुझे 500 रुपया ले लिया, पैसा तो निकल आया, हो सकता है जितने लोग मौजूद हैं एक साथ 1200 रुपये दे दें, सारे लोग उठाई देते हैं, कोई मतलब नहीं, सेकंडों में दे देंगे। आदत इस बात की डालनी है कि हर पहली तारीख को 100 रुपया हर आदमी ट्रांसफर करें। देखिए ये जो कमिटमेंट है ये इस तंजीम को बहुत आगे ले जा सकता है। ऐसा है, हम लोगों ने क्या रखा है कि जो ऑफिस बियरर और कमेटीज के मेंबर हैं वो वीकली बेसिस पर मिलते हैं, वीकली बेसिस, और गवर्निंग बॉडी मंथली बेसिस पर मिलती है। तो दोनों तरह से पॉसिबल है। जो 100 रुपये करके देना चाहे वो 100 रुपये करके दे सकता है, जो इकट्ठा देना चाहे एडवांस से लेके अप्रैल तक का अप्रैल में दे देना, दैट इज नॉट। अब मार्च अप्रैल में अगर वो 12 महीने का दे रहा है तो फिर वो कोशिश क्या है कि दोनों तरफ से देखना है, इन्वॉल्वमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल वायबिलिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे काम शुरू होते हैं मगर नहीं हो पाते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं। जब तक फाइनेंसेस अवेलेबल प्रॉपर नहीं होंगे तब तक कोई काम आप पाए तकनीक तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि फाइनेंस बैकबोन है किसी भी मूवमेंट की, किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा बार नहीं डालना, ठीक है। अभी ये मेडिकल कैंप और भी कुछ नहीं, बस मैं आपको प्रेस रिलीज दे रहा हूँ और उसके साथ ही वो दे अभी फोटो प्रिंट करेंगे हमारे भाई सबको ये एक दीजिए। आप में से किसी और का कोई और सवाल हो तो बताएं। अभी तो आपने शुरू किया है कि ज़्यादा हमने सिर्फ ज़्यादा सवाल नहीं इनिशियल सवाल के बाद ये किया है। वैसे ही ज़्यादा हो गए हैं, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे डिस्कस कर रही है। आप तो छोड़े देते हैं अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के बाद हम फिर यही आप फिर हम ये सवाल करेंगे। आप बम्फर के साथ आइए, इंशाल्लाह जो है बाउंड्री ही पाएंगे। कौंसल साहब नहीं आएंगे, वो कौंसल साहब ये अशरफ भाई से लाइट बिल में बात होगी, लाइट बिल में हर चीज़ जो है उस तरह से नहीं होती। भाई एक काम होता था अच्छा काम हो तो सबको अच्छा लगता है और अच्छा होना चाहिए। किसी को नहीं मिला है आप ये मुझे नहीं, और प्रेस वालों को यहाँ तो मिला है, हमको यहाँ कॉपी मिला है। अगर किसी को प्रेस रिलीज ना मिली हो तो और तो कोई कॉन्सेप्ट दे दिया। आपने भी जानना चाहा उसके बारे में भी बताया। ये एक जज्बा है कि लोगों का ये काम थोड़ा कम्युनिटी में ज़रूरत है उसको थोड़ा थोड़ा किया जाए, जो जिन चीज़ों को छुआ जा सकता है, जिनको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है, वो आपसे बताया गया। क्योंकि काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे इतनी सारी तंजीमें हैं, लेकिन ये है कि अलग और मिलकर जो हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं उसकी कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप में से कोई भी हमारे जो इंद्राज़ मकासिद पढ़ के या समझ के
اس کام کو آگے بڑھانے میں آپ کوئی ہماری رہنمائی کریں، اس میں آپ میں سے کوئی جوائن کرے، اگر اس کو کوئی ٹھیک کسی کو لگے کسی وقت کہ اس کام کو کیسے اور بڑھایا چلایا جا سکتا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ان لفظوں کے ساتھ میں ڈاکٹر رئیس صاحب سے درخواست کروں گا کہ رئیس صاحب کو ہاں وائس پریزیڈنٹ نمبر میں آپ باتیں تو ساری جو اس سے متعلق تھی، میں سبھی صحافی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر جو ہے یہاں پر تشریف لائے، اور میں اس امید کے ساتھ کہ آپ 2 تاریخ میں بھی اپنا بہت قیمتی وقت تھوڑا سا لگائیں، ایک راؤنڈ لگا لیں، آپ دیکھ کر کے چلے جائیں تو ہمیں کافی اچھا لگے گا، اور آگے بھی ہماری جو ہے رہنمائی آپ کی ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے اس موقع پر یہ سینئر سٹیزنز ہماری اس RWA کے یہاں آ گئے ہیں، اس سے بھی ہم کافی ہمیں حوصلہ افزائی ملی ہے، اور میں اپنی RWA سے کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس ریکویسٹ کو مان کر کے اور انہوں نے یہاں پر اپنا تعاون دیا اور ہمیں اجازت دی اس پروگرام کو کرنے کی، اور اس کے بعد بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس طرح کے پروگرامس ہم یہاں پر پہ کرتے رہیں گے۔ اور اس پریس کانفرنس میں ہمارے خالد بھائی، یامین بھائی اور ہمارے عاصم یاسین میں صابر بھائی کا مطلب ہے عاصم محمد عاصم اینڈ عاصم ظفر صاحب، یعنی کہ لوگوں کا جو ہے بہت بہت کل سے کافی انہوں نے محنت کی ہے اس کو سجانے میں، بنانے میں۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا لائٹ ریفریشمنٹ کا پروگرام رکھا ہے، اس کے بعد جو ہے پورے دن کے لوگ آ گئے۔ Like I woke up in a ditch, like I was run over by a train. I've been looking for ways to get on, but I've been hungry for days. Thinking, is this what I deserve? God, I really don't know, but I keep looking for ways to get on. Look what my struggles pay.